علیمہ خانم صاحبہ آج عدالت میں تھی، اس خبر کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج وہاں پر تفصیل سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو قید تنہائی ہے اس پر بات چیت ہوئی، اس کو آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کیس کو وہ ظاہر ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی تھیں. ان سے 2 مختلف موقعوں پر یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے اس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے اس پر 2 مختلف موقعوں پر کیا جواب دیا، سنیے. یہ جو لوگوں کی تحریک ہے یہ اپنا راستہ خود بنائے. 27 ستمبر کی تاریخ سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں جلدی سو جاتی ہوں. صبح اٹھ کے یہاں صبح آپ نے تو دیکھا، آپ اور ہم سارے دن عدالت میں بیٹھے ہیں، میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں. ڈیٹ مجھے پتا چلی تھی، مجھے اس کے پیچھے اس کی وجوہات نہیں پتا. میں ان لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ 27 ستمبر سے پہلے 13 اگست بھی آتا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے حقیقی آزادی کے لیے بھی تو کھڑے ہونا 13 اگست کو 14 اگست کو. تو مجھے نہیں پتا، ہمیں تو صرف جو عمران خان کرتے ہیں، لیکن آگے ان کا کوئی لائے عمل ہوگا اور ہونا چاہیے. عمران خان کو اور ہم نے کیسے نکالنا پریشر. ہماری تو یہی ریکویسٹ تھی پارٹی سے کہ آپ اتنا پریشر بنائیں تاکہ عمران خان کا علاج ہو سکے اسپتال میں، تاکہ عمران خان کی قید تنہائی ختم ہو سکے. عمران خان انتظار کرے جی، عمران خان کو انتظار کر رہا ہے. میں تو خود ہی سمجھ آئی آپ سے میڈم کو مشاورت نہیں کی گئی سوالوں سے نہیں ڈسکس کرتے. سن لیا آپ نے، یہ پہلا ایک ڈیفرنٹ صحافی کا سوال تھا اور پھر دوسرا متی اللہ جان صاحب کا تھا. دونوں آپ نے سن لیا اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ 13 اگست بھی تو آتی ہے، 14 اگست بھی تو آتی ہے. یہ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، تو مطلب یہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی نہیں پتا تھا. یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں جن سے میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے کلیئر کیا کہ نہ ہی یہ کور کمیٹی اور نہ ہی یہ پولیٹیکل کمیٹی سے انڈورسڈ ڈیٹ ہے. تو پھر یہ ڈیٹ کہاں سے آئی؟ اب مجھے نہیں پتا یہ 4 تاریخ کی میٹنگ میں سے آئی یا سہیل خان آفریدی خود سے سوچتے ہیں یا وہ بھی انہی دوستوں کی طرح سوچتے ہیں کہ اب گرمی کم ہو جائے گی اور اب گرمی زیادہ ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ 2 مہینوں میں سہیل خان آفریدی کو ایسا کیا مل جانا ہے جس سے لانگ مارچ تب کامیاب ہوگا. اگر ہو سکتا تھا تو میری جو آنیسٹ اوپینین ہے اس میں ابھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ذرا ایک لمحے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا، سوچئے ابھی تک جب سے یہ کشمیر کا سارا معاملہ ہے، تحریک انصاف کو جس طریقے سے کشمیر میں گرتی ہوئی لاشوں پر کھڑے ہونا چاہیے تھا. کھڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق لے کے کھڑے ہونا تھا. مطلب کیا ہم نے انٹرنیشنلی کوئی کال دی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ پارٹی نے نہیں دی ابھی تک. جنہوں نے اکا دکا خود سے احتجاج کیے لیکن کوئی انٹرنیشنل کال نہیں اس کے اوپر. کیا ہم نے پاکستان کے اندر پے در پے پریس کانفرنسز کی؟ کیا ہم نے ایمبیسڈرز کو بلا کے کہا کہ ان کو روکیں، یہ کیا کر رہے ہیں ویسٹرن ایمبیسڈرز جو ہیں؟ کیا ہم نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو کوئی خط لکھا؟ کیا ہم نے اپنا ڈیلیگیشن کشمیر میں بھیجنے کی کوشش کی؟ کیا کشمیر کے اندر جو ہماری پارٹی کا رینک اینڈ فائل ہے وہ جا کے احتجاج کے اندر، اس پرامن احتجاج کے اندر جا کر بیٹھے؟ تو ہم بالکل ایبسنٹ ہیں. ویسے ہی جیسے پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوتی ہے ہم ایبسنٹ، جنگوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم ایبسنٹ، باقی تمام کرپشن کا کوئی معاملہ آتا ہے، جہاز آتا ہے مریم نواز کا اور چیزیں آتی ہیں ہم ایبسنٹ. پنجاب اسمبلی میں بھی ایبسنٹ، اوپر بھی ایبسنٹ. تو ہم اپوزیشن کے طور پر مکمل طور پر اتنے ایبسنٹ ہیں کہ اس سے شائبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید سہولت کاری کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو ابھی مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ جو سارا وقت ہے اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک وفد بھیجتی، کشمیری قیادت جو کشمیر میں ہماری پارٹی ہے، وہ جا کے ان کو کہتی کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم 13 اگست کو پشاور سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف اور آپ نکلیں گے مظفر آباد کی طرف سے. ہیں ہم بھی نہتے ہیں، آپ بھی نہتے. دیکھتے ہیں ان کی گولیاں ختم ہوتی ہیں یا ہم دونوں پارٹیز، آپ ادھر سے اور ہم ادھر سے اسلام آباد پہنچتے ہیں. آپ سوچئے اس میں دونوں پارٹیز کو کتنی تقویت ملتی. ایک طرف وہ مظفر آباد سے اسلام آباد آ رہے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے فیصلے سارے بھی تو اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں نا، مظفر آباد میں تو ان کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ بھی وہاں سے ادھر کو آتے اور پاکستان تحریک انصاف بھی پشاور سے نکل کے اور ملک کے دوسرے طول و عرض سے بھی نکل کے نہتے پرامن شہری جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرتے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی بتا دیا. بدلے میں ہوا کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ جو آپ سنیں گے تو اس سے آپ حیران رہ جائیں گے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ شفیع جان صاحب نے 2-3 انٹرویوز دیے. صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ 27 ستمبر کی کال دی ہے، یہ بڑی لمبی کال ہے، یہ آپ نے کیوں دے دی ہے، جلدی کیوں نہیں دی؟ اور انہوں نے وہاں میرا نام استعمال کیا کہ شہباز گل صاحب بھی اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور انہیں پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب جواب تو انہوں نے دینا تھا کہ 27 ستمبر کی جو ہم نے لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے وہ کس وجہ سے صحیح ہے اور کس وجہ سے غلط ہے، اور میری تنقید اس میں کس وجہ سے صحیح ہے کس وجہ سے غلط ہے. انہوں نے اس کے جواب میں مجھ پر ذاتی حملے کرنے شروع کر دیے. ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ چودھری ظہور علائی صاحب پر بھینس چوری کا کیس بنا دیا. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ فلاں پولیٹیشین کے اوپر بکری چوری کا کیس بنا دیا، فلاں پر یہ کر دیا. یہ سنتے تھے، اب خود اس کو بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے ایسے مقدمے جو تھے وہ کسی کو سزا دلوانے کے لیے تو نہیں کیے جاتے تھے. بھینس چوری یا بکری چوری جو ہے اس میں سے کچھ نکالنا تو نہیں ہوتا تھا، صرف اپنے سیاسی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، یا جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے، اس طرح کی ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے بھینس بکری چوری وغیرہ کے مقدمے بنائے جاتے تھے. اب موبائل چوری کا مقدمہ بنایا جاتا ہے. تو شفیع جان صاحب نے 27 تاریخ کا
जवाब देने की बजाय ये कहा कि शहबाज गिल जो हैं उन्होंने इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किए थे जब वो चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये पहले जर्नैलों का और पार्टी के अंदर से कुछ ऐसे लोग जिनको जाहिर है बड़ी तकलीफ थी या जिनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को मैंने टाइट करके रखा था, उनके पास जब मेरी करप्शन या कोई और फिल्म वीडियो की कहानी नहीं थी तो जर्नैलों के साथ मिलकर उन्होंने ये कहानी बुनी और शेर अफजल मरवत पहले बेचारे टेलीविजन पर इसे पैडल करने की कोशिश करते रहे, ये सोचे समझे बगैर कि खान साहब के फ़ोन्स के जो पासवर्ड थे, आई क्लाउड था, वो सब तक की मुझे एक्सेस थी। और अगर आपके सर में ज़रा सा भी दिमाग है तो अगर किसी के पास वो एक्सेस है तो उसने फिजिकली उन फोन्स को क्या करना है जब वो पूरा डाटा ही डाउनलोड कर सकता है। अब आगे उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये वहाँ पर बैठकर अरबों रुपए कमाते हैं और ये हम पर एतराज़ करते हैं, ये पाकिस्तान आएँ और इस चीज़ को खुद लीड करें। महर बुखारी क्योंकि एक मंजी हुई, आप ये कहिए कि जर्नलिस्ट हैं, पुरानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आगे से बड़े इंपॉर्टेंट सवालात किए। बाहर कुछ जो लोग हमारे पार्टी के बैठे हुए हैं, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अगर वो उनको इतनी ही परवाह है, आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है, वो आए पाकिस्तान में लीड करें चीजों को। मुझे तो सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आया, शहबाज गिल का। सर, ये आप उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहबाज गिल की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मोबाइल चोर हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के मोबाइल चुराए। उनके जब वो एयरपोर्ट पे उतरे और उनको किसके हवाले किया, ये गलती वो खुद मानते हैं। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने ही एक मोबाइल दिया जो कि बग था, ये गलती भी उन्होंने की। फिर इमरान खान साहब ने उन पे बैन भी लगाया अपने घर में। लेकिन उसके बावजूद वो जिस किस्म का बयानिया बना रहे हैं और जिस किस्म के डॉलर वो कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि जो डॉलर वो इमरान खान के नाम पे कमा रहे हैं, वो जो हमारे जो कोर्ट्स में लोग हैं, जो वकीलों की फीसों का इशू है, वहां भी कुछ डोनेट करें। अरबों डॉलर वो कमा रहे हैं, लाखों डॉलर आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स, लवर्स जो हैं वो जोक दर जोक उनके पास जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं। ये आप कह रहे हैं जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, वो तो कोई क्लिक करके देख ही रहा होगा ना कि जो इतनी पजीराई है। तो क्या इमरान खान के सपोर्टर्स में को इमरान खान का पैगाम की झलक उनमें ज्यादा लगती है निस्बतन आपके? देखें वो पाकिस्तान आए ना, उसने तो एक जेल गुजारी और पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। वो पाकिस्तान आए, वो इमरान खान की बात करते हैं तो लीड करे इस तहरीक को। उनके आने से आपको लगता है ये तहरीक आपकी तगड़ी हो जाएगी? तगड़ी होगी नहीं होगी वो एक अलग बहस है। लेकिन वो जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, फिर उस नुक्ताचीनी का तो मकसद यही है कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में लीड करें इसको हुसैनियत और यजीदियत की बात करते हैं। हुसैन के हम सब पैरोकार हैं। हुसैन तो मैदान में खड़े थे ना, उन्होंने तो फिर अपनी शहादत दी। तो फिर अगर उसके पैरोकार हैं तो फिर आप मैदान छोड़ के क्यों बाहर भागे हुए हैं और बाहर बैठ के आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस तहरीक के बारे में, अफरीदी साहब के बारे में, हुकूमत के बारे में। मतलब मैंने वही कहा कि बकरी चोरी, भैंस चोरी और अब मोबाइल फ़ोन चोरी जो है, इस तरह की बातें ये बना रहे हैं और सुना रहे हैं। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है कि जो यूट्यूब है उस पर कितने लोग आपको देखते हैं इसकी शिकायत की गई हो या इसको बुरा समझा गया हो। जेल के अंदर हमारे दोस्त मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने भी एक दफ़ा खान साहब को कहा कि ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, वो शहबाज गिल को भी लाखों लोग सुनते हैं और वो लाखों डॉलर इससे बनाता है। तो खान साहब ने मुस्कुरा के आगे से कहा, अच्छा तो इसका मतलब है उसे इतने ज़्यादा लोग सुनते हैं। मतलब उन्होंने डॉलर्स और वो तमाम चीज़ें इग्नोर कर दी। उन्होंने हंस के आगे से कहा, इसका मतलब है कि शहबाज गिल को इतने ज़्यादा लोग सुनते हैं। और अगला जुमला उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, हमारे अपने घर का एक मीडिया आउटलेट बन गया, मेहनती है, उसने खासी मेहनत की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये खान साहब के सामने भी बार बार ये मुद्दा प्रेजेंट किया गया कि ओ हो बहुत ज़्यादा क़यामत आ गई है, लेकिन जो असल मुद्दा है उसका जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, मुझसे हट के कुछ और डिस्कशन भी हुई कि महर बुखारी साहबा ने पूछा कि आपने तो लॉन्ग मार्च करना था, वो छोड़ के आप और कुछ करना शुरू हो गए। तो उन्होंने उन्हें नेशनल लीडर डिक्लेयर कर दिया सोहेल अफरीदी को, लेकिन जो सवालात थे महर बुखारी के उनका जवाब नहीं दिया। हमारे छोटे भाई हैं शफी जान, वो कैसे तड़प रहे थे, सुनिए। पहली बात यह है कि ये सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला है। पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा अफरीदी साहब ने कल किया, उनकी कैरियर का सबसे बड़ा जलसा था। वो एक नेशनल लीडर के तौर पर इस वक्त उभर रहे हैं, वो क्राउड पुलर हैं, लोगों को उस पर एतमाद है। जहां तक 27 सितंबर की बात है, कलामी माफ अगर आप बुरा ना बनाएं, उनका क्राउड पुलर होना या एक नेशनल लीडर बनना तो मकसूद था ही नहीं ना। वो तो एक टास्क देकर उनको ये इमरान खान ने वज़ारत आला जो है वो सौंपी थी। उन्हें ये तो नहीं कहा था कि बेटा वर्ल्ड लीडर बन जाओ। लेकिन नेशनल लीडर वो बन गए हैं इमरान खान साहब की मरहून मेहनत। अब वो नेशनल लीडर का फायदा ये है कि वो क्राउड पुलर है और क्राउड अपने साथ इस्लामाबाद वो लेके आएंगे 27 सितंबर की। माजरत के साथ नहीं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, व्हिच आई हैव नेवर मेट हिम। मैं तो जाती तौर पे कभी मिली नहीं, बट अच्छा ही सुना है। मगर वो बन गए हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने जो वो बन गए हैं ऑलरेडी? ये तो इमरान खान के लिए लोग बाहर आए थे या सोहेल अफरीदी? डेफिनेटली, देखिए डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए आए थे, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, उसकी क़यादत पे लोगों को एतमाद है। अगर एतमाद ना होता तो लोग तो बाहर इतने तादाद में ना आते। एक साल हो गया है और मैं तो ये आपसे भी बार-बार पूछती गई, एक साल लगा दिया सोहेल अफरीदी ने कुछ करने के लिए, तो एतमाद काहे को और कैसे है लोगों को अभी? बहुत अच्छी बात, मैंने तो इब्तिदाई में ही कह दिया ना शफी जान साहब कि बेहतरीन जलसा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ। मेरी इत्तलात के मुताबिक भी जबरदस्त जलसा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ इस नंबर्स में। देखिए जितना बड़ा जलसा कल हुआ है, इतना बड़ा जलसा ना बिलावल कर सकता है और ना मरियम कर सकती है। मैं यही तो समझना चाह रही हूं, जब इतने ज्यादा लोग थे जो तारीख में माइनस इमरान खान कभी नहीं हुए, तो इन सबको इस्लामाबाद ही क्यों ना लाए, जो जिसकी ख्वाहिश का इजहार वो कर रहे थे? ले आते, 2 महीने बाद की डेट क्यों दी है? अब मैं इसी पे आ रहा हूं। 27 सितंबर की डेट इसलिए दी गई है कि हमने तैयारी करनी है, हमने एज अ अलायंस आगे बढ़ना है। हमने जीयूआई को इसके साथ साथ दीगर जो मजहबी जमातें हैं, जो यहाँ पे मकामी जमातें हैं, जो सियासी कुव्वत हैं, उनको अपने साथ शामिल करना है और हमने इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ना है। और इस तहरीक को नौजवान लीड करेंगे। तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने ऑन बोर्ड करना है। अफरीदी साहब की क़यादत में नौजवान आगे होंगे और इमरान खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है और उसके बाद इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना ऑन कार्ड्स है। सुन लिया आपने, मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए सुनाई कि उनके इल्जामात कहीं अनसुने ना रह जाएं। उनके इल्जामात आपके सामने आने चाहिए ताकि आप पर मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि भैंस चोरी, बकरी चोरी, अब ये बिलो द बेल्ट जो इल्जामात हैं, इनके ऊपर क्या इंसान जवाब दे और क्या बात करे। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जनरल्स का, बल्कि कर्नल साहब का ये बयानिया है जो इन बेचारों को दिया गया है। हालांकि मैंने पॉलिटिकल कमेटी में बहुत बार सीनियर लीडरशिप को एक बात समझाई, क्या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और जो इवन हमारे दोस्त पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं,
उनमें से बहुत सारे ये वज़न नहीं उठा सकते जो वज़न हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मैंने उन्हें कहा आप हमें वसीम अकरम के तौर पर इस्तेमाल करें। आप मजाक ना बना लीजिएगा वसीम अकरम प्लस वाला, मैं वसीम अकरम प्लस की बात नहीं कर रहा, मैं वसीम अकरम माइनस वाली भी चलें बात कर लें। मैंने कहा कि आप हमें वैसे इस्तेमाल करें, हमसे बाउंसर मरवाइए क्योंकि हम मार सकते हैं, हम वो वज़न उठा चुके हैं, हमने बेड़ियाँ जला दी हैं। तो आप हमें डरा के जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उन्हें कहें कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, आपकी मर्जी से 27 सितंबर या जो कॉल आप कहें देने को तैयार हैं, लेकिन ये बदमाश है हमारी पार्टी के अंदर, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये बुरे हैं, बदतमीज़ हैं, लोफर हैं, जो भी लफ्ज़ आप हमारे बारे में उनके सामने इस्तेमाल कीजिए, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये हमसे लड़ते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते, हमारी इज्जत खराब होगी। या तो आप इन्हें चुप करवा लें किसी तरह से, और या फिर हम क्या करें, हमें तो ये बहुत बदनाम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बेच के, हमें सामने रख के, बैड कॉप गुड कॉप, हमें बैड कॉप के सहारे या बैड कॉप बनाकर सामने रखें, हमें बेचें और अपने लिए स्पेस क्रिएट करें। ये मैंने पॉलिटिकल कमेटी में, कोर कमेटी में, सीनियर लीडरशिप को बारहा ये मैसेज दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स की गुड बुक्स में आने की, मैं अपनी कश्तियां जला चुका हूं, इसलिए आप हमें इस्तेमाल करें और इमरान खान के लिए कोई जगह लें। अगर हमारी तनकीद उनको बुरी लगती है और आपको उनके साथ ये बात करना पड़ती, वो कहते हैं कि शहबाज गिल इस बात पे तनकीद ना करे, जैसे मुझे आज पैगाम आया किसी के हाथ, एक बड़े अच्छे सीनियर डिसेंट सहाफ़ी के हाथ, कि जी उस तरफ से ये पैगाम है कि आप आसिम मुनीर पर तनकीद ना करें, जनरल आसिम मलिक पर करें। ये मुझे नहीं समझ आई क्यों, मेरी मंतक तो मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो तो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, जो ISI के चीफ हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं, जाहिर है, अब पता नहीं, कई दफ़ा जो कम पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो दूसरे को भी अपनी लेवल का समझता है, चे समझता है, और उसको लगता है वो उसको बेवकूफ़ बना सकता है। हमारे बहुत सारे फौजी दोस्तों का भी, जो अफसरान हैं, उनका भी ख्याल यही होता है, वो दूसरे को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि गिल साहब को ये वाली बत्ती दिखाएंगे और वो समझेंगे अच्छा यहाँ से तेल निकलेगा, और वो अपनी तोपों का रुख आसिम मलिक साहब की तरफ कर दें, आसिम मुनीर को छोड़ दें, और हम उन्हें यह कहें कि असल बंदा, असल ख़राब बंदा आसिम मलिक है, आसिम मुनीर तो बहुत अच्छा है। ये कैसे मुमकिन है? आसिम मलिक जो हैं वो आसिम मुनीर की दी हुई एक्सटेंशन के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। जिस दिन आसिम मुनीर के उनसे इख्तलाफात हो गए, 5 मिनट वो उस दफ्तर में काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है वो जो भी फौजी अफसर हमें पैगाम भिजवाया, उन्होंने आज एक जर्नलिस्ट के हाथों उन्होंने अपनी तरफ से यही कोशिश की कि इनको चे बना लें और ये बन जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि इन दोस्तों को हमने बहुत दफ़ा कहा कि हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारे कहने हमें सामने रख के अपने लिए स्पेस लीजिए, लेकिन ये बेचारे, मेरा ख्याल छोटा भाई है हमारा, हम इन्हें क्या कहें, बुरा भला तो मैं नहीं कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको सुहेल अफरीदी साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। आपने ये क्लिप सुना? ओ भाई, मार्च जाए भाड़ में, मार्च जाए दही लेने, तेल लेने। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इस एक्टिंग पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑस्कर अवार्ड इस मर्तबा मिलना है तो सुहेल अफरीदी को दें, लक्स सिनेमा अवार्ड या जो भी अवार्ड मिलना है तो सुहेल अफरीदी को दें, कि इन्होंने अपनी एक्टिंग में सुल्तान राही, मरहूम मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी साहब, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, जिस मर्जी का आप नाम ले लें, इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे बेहतरीन एक्टिंग अगर मैंने किसी की देखी है तो मैंने सुहेल अफरीदी को एक्टिंग करते देखा है कि अनप्रेसिडेंटेड है, बेनजीर है, कि मौसूफ फरमा रहे हैं निकलोगे, जिस तरह भुट्टो साहब कहते थे लड़ोगे, लोग कहते थे लड़ेंगे, भुट्टो साहब कहते थे हमारी खातिर मरोगे, लोग कहते थे मरेंगे। यकीन करें, क्राउड को चार्ज किया, कल लाहौर में वाने अदल के बाहर सहाफियों को मार पटवाई, अपने MPs MNAs को फरमाइशी गिरफ्तारियों से गिरफ्तार करवाया, आम जो वासाइलीन थे उनको फेंटे पड़े। कल सारा दिन लाहौर के क्या हालात रहे, और नतीजा ये निकला कि तकरीबन एक हफ्ता कम, तकरीबन 2 माह बाद इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है इमरान खान की रिहाई के लिए। अगर शर्तें ना मानी गई, उनको इलाज की सहूलत ना दी गई, हुकूमत कह रही हम दे रहे हैं, उनको उनकी फैमिली मेंबर से, उनके फिजिशियन से और उनकी काउंसलर से, यानी जो वुकला हैं, जो दीगर मेंबरान हैं, उनसे मिलने ना दिया तो हम वो मार्च करेंगे। मेरा सवाल ये है कि ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं, वो लफ्ज तो मैं बोल नहीं सकता, कि मुझे बताएं 2 माह बाद जो ये बंदा कह रहा है मैंने मार्च करना है, मार्च तो मेरा ख्याल है 4 से 5 दिनों में उसकी तैयारी हो सकती थी, ये 2 माह क्यों आगे ले गए? कभी आपने इस बात को सोचा? डिलीवरेंस इन लोगों की KPK में सिफर है, खुदा की कसम सिफर। ऑपोजिशन इनसे बड़ी फ्रेंडली पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आई। अब कह रहे हैं जी हम 2 माह तकरीबन बाद मार्च करेंगे, खान को रिहा करवाएंगे, हमारे लीडर की आंख खराब हो रही है, यह हो चुकी है, यानी 2 माह मजीद अगर आपकी बात मान ली जाए उसकी आंख खराब हो, उसको कह दे तन्हाई में रखे, यानी 2 माह मजीद उसको कह दे तन्हाई में रखा जाए। वो कोई खुदा का खौफ करो, वो कोई शर्म करो, किस तरफ कौम को लगाया। अगर नहीं उसको बाहर ला सकता, काम तो कम से कम KP में शुरू कर दो, कि बिल्कुल ही उसका नाम तुमने मलिया मेट करना, उसकी पार्टी को खत्म करने की तुमने कसम खाई हुई है। व्यूअर्स, ये मैक्सिमम 4 से 5 दिनों की तैयारी होती है किसी भी मार्च को। इस बंदे का कंटेनर जो इसने, पहले इन्होंने कहा जी कलम छोड़ हड़ताल, चले शुरू करते हैं, हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। उससे पहले अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा
اپنے سپورٹرز کو, خان کے بلکہ سپورٹرز کو بیوقوف بنا کے نکل گیا. وہ بھی ایک طرح سے رنگ بازی, فراڈ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکا. پھر ہم آتے سہیل آفریدی پہ, کام ٹکے کا نہیں کروایا. کے پی کے حالات میرے پختون بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں اس نے کام کتنا کروایا ان تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے اندر. آپ سب چھوڑ دو, آپ نے لانگ مارچ کرنا تھا, آپ 4-5 دنوں میں کر سکتے تھے. آپ کا کنٹینر تیار ہے جس پہ آپ نے لکھا ہے حقیقی آزادی یا شہادت, وہ کنٹینر کدھر ہے؟ وہ چیچوں کی بلیاں دہی لینے گیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. آپ کے پاس آپ کی ٹیم ہے, آپ کا منشور ہے, آپ کی پلاننگ ہے, آپ نے جتنے بندے لے کے جانے وہ تو کل بھی وہاں موجود تھے. آپ 4 دنوں میں میکسیمم آپ یہ کر سکتے تھے, لوگوں کو کہتے بھائی آپ اپنی اپنی گاڑیوں کا, جو خان کے چاہنے والے جو والنٹیرلی نکلنا چاہتے ہیں, کھانے پینے کا انتظام کریں, ہم جاتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں خان کی رہائی کے لیے, یا ایٹ لیسٹ خان کو یہ فیسلٹیز ملے. بھائی جان 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے, فرمائشی گرفتاریاں ہو جائیں گی, مزید سختیاں ہو جائیں گی, مزید پابندیاں لگ جائیں گی, ان پہ مزید چیلنجز آ جائیں گے, اور یہ آپ کو مزید بیوقوف بنائیں گے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نکل جانا تھا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے. پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.